اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات السلام علیکم، میں محمد جواد اقبال لیکچرر اردو چناب کالج جنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع سخن اردو سال دوم میں اہم سوالات اور پیپر کی تیاری کے متعلق ہے۔ ہم اس لیکچر میں درجہ بدرجہ تمام سوالات کی تیاری کا طریقہ اور تمام اہم سوالات زیر بحث لائیں گے۔ عزیز طلباء، انشائی حصے کا پہلا سوال نظم کے اشعار کے متعلق ہے، جس میں حصہ نظم میں سے 2 اشعار دیے جاتے ہیں جن کی تشریح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، اگر آپ گزشتہ 10 سالوں کے پیپر دیکھیں تو تشریح کے حوالے سے سب سے اہم ترین نظمیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حمد، نمبر 2 نعت، نمبر 3 سراغ رہرو، نمبر 4 نوجوان سے خطاب، نمبر 5 تغیر، نمبر 6 اسلامی مساوات، نمبر 7 آدمی۔ عزیز طلباء، زیادہ تر یہ سوال پہلی 2 نظموں میں سے آتا ہے۔ اگر پہلی 2 نظموں میں سے یہ سوال نہ آئے تو سراغ رہرو، نوجوان سے خطاب یا تغیر میں سے ایک نظم تشریح کے لیے آتی ہے۔ عزیز طلباء، اس سوال کو تیار کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سراغ رہرو، نوجوان سے خطاب اور تغیر تینوں نظموں میں حرکت و عمل کے متعلق بتایا گیا ہے، یعنی اگر آپ ان میں سے ایک نظم کے حوالہ جات تیار کر لیں گے تو آپ باقی بھی 2 نظموں کی تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ان 5 منظومات میں سے تشریح نہ آئے تو اسلامی مساوات یا آدمی میں سے اشعار آ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، جو کہ پہلے سوال کا ہی دوسرا حصہ ہے، وہ غزلیات سے متعلق ہے۔ سال دوم میں جو سب سے اہم غزلیات برائے تشریح ہیں وہ میں نے ترتیب کے ساتھ لکھ دی ہیں۔ نمبر 1 مرزا غالب، نمبر 2 غلام حمدانی مصحفی، نمبر 3 خواجہ میر درد، نمبر 4 علامہ اقبال، نمبر 5 ناصر کاظمی۔ عزیز طلباء، 90% پہلے دو شعراء کی غزلیات آنے کے چانسز ہیں۔ اگر آپ گزشتہ 10 سالوں کے پیپر کو دیکھیں تو غالب اور مصحفی زیادہ تر پیپرز میں تشریح کے لیے دیے گئے ہیں۔ اگر غالب اور مصحفی کی تشریح نہ آئے تو تیسرے نمبر پر اہم ترین شاعر خواجہ میر درد ہیں، چوتھے نمبر پر اہم ترین شاعر علامہ اقبال، جبکہ ناصر کاظمی 5ویں نمبر پر اہم ترین شاعر ہیں۔ بیٹا، اس میں تابش اور فراق گورکھپوری کو میں نے نہیں لکھا، ان شعراء کی غزلیات تشریح کے لیے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ غالب، مصحفی، میر درد اور اقبال کو اسی ترتیب سے یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ سوال اچھی طریقے سے تیار ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 اقتباسات کی تشریح کے متعلق ہے۔ اہم اسباق برائے تشریح درج ذیل ہیں: مناقب عمر بن عبدالعزیز، تشکیل پاکستان، نواب محسن الملک، محنت پسند خیرت مند، ہوائی، مولانا ظفر علی خان، مولوی نذیر احمد، ایوب عباسی۔ عزیز طلباء، 90% چانس ہیں کہ پہلے 3 اسباق میں سے ایک پیراگراف تشریح کے لیے آ جاتا ہے۔ اگر پہلے 3 اسباق میں سے
तशरीह के लिए पैराग्राफ ना आए तो मिन्नत पसंद खिरदमंद हवाई, मौलाना जफर अली खां, मौलवी नज़ीर अहमद और अयूब अब्बासी में से लाजिमी तौर पर एक पैराग्राफ तशरीह के लिए आ जाएगा। आपको चाहिए कि तशरीह के लिए पहले 3 असबाक बेहतरीन तरीके से तैयार करें। अगर आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से ये सवाल तैयार करना चाहते हैं तो आप ये 8 असबाक तशरीह के लिए तैयार कर लें। इसमें अगर बगौर देखा जाए मौलाना जफर अली खां, मौलवी नज़ीर अहमद, अयूब अब्बासी, नवाब मोहसिनुल मुल्क, ये तमाम शख्सियात हैं और इनके हवाले जात एक सबक के हवाले जात दूसरे सबक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा सवाल नंबर 3 खुलासे से मुतल्लिक है। अहम असबाक बराए खुलासा दर्ज झैल हैं मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज, नवाब मोहसिनुल मुल्क, अकबरी की हिमाकतें, दस्तक, कुर्तबा का काजी और हवाई। अजीज तलबा, अकबरी की हिमाकतें, दस्तक और कुर्तबा का काजी सबसे अहम असबाक बराए खुलासा हैं। आपको चाहिए कि पहले 3 असबाक के खुलासे तैयार करें और उसके अलावा इन असबाक के खुलासे तैयार करें। इंशाअल्लाह आपका ये सवाल भी इन्हीं असबाक में से हो जाएगा। सवाल नंबर 4 मंजूमात के खुलासे के मुतल्लिक है। इसका गैस देना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर गुज़श्ता 10 साल के पेपर्स को देखा जाए तो ज़्यादातर खुलासा इन मंजूमात में से आया है। नंबर 1 हमद, नंबर 2 नात, नंबर 3 खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, नंबर 4 एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में, नंबर 5 इस्लामी मसावात, नंबर 6 आदमी। अजीज तलबा, गुज़श्ता कुछ सालों से मुम्तिहन एक और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि वो जिस नज़म की तशरीह देते हैं उसी नज़म का खुलासा भी दे देते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अगर आप इस सवाल को बेहतरीन और यकीनी तौर पर तैयार करना चाहते हैं तो इन नज़मों के अलावा सुराग रहरो, तखय्युर और नौजवान से खिताब के खुलासे भी तैयार कर लें। इसके बाद 5वां सवाल खतूत निगारी और आप बीती से मुतल्लिक है। अजीज तलबा, 90% चांस है कि खत आता है। अगर खत नहीं आएगा तो 10% चांस है कि आप बीती आए। इन दोनों सवालात में से एक सवाल आएगा और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। खतूत आमतौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, निजी या प्राइवेट खतूत और एडिटर के नाम खतूत। अहम निजी खतूत दर्ज झैल हैं। दोस्त के नाम वालिद की वफात पर तज़ियत का ख़त, वालिद के नाम सैर की इजाज़त का ख़त, चचा के नाम तोहफे के शुक्रिया का ख़त, छोटे भाई को बुरी सोबत से बचाने और मेहनत से पढ़ने का ख़त, वालिद के नाम हॉस्टल की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ ख़त, दोस्त के नाम इम्तिहान में कामयाबी का ख़त, छोटे भाई के नाम ख़त लिखकर उसे तालीम के साथ हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन का ख़त, वालिद के नाम रकम मंगवाने का ख़त, वालिद के नाम इम्तिहान में कामयाबी का ख़त और इसके अलावा अपने उस्ताद के नाम इम्तिहान में कामयाबी के शुक्रिया का ख़त। इस तरह के ख़त जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं। एडिटर के नाम खतूत में ट्रैफिक के हादसात और मदबिलिंग का रुझान के मुतल्लिक, महंगाई, करप्शन, दहशतगर्दी और लाकानूनियत के मुतल्लिक, इंटरनेट की तबाहकारियाँ, मोबाइल फ़ोन के तलबा में बेजा रुझान के मुतल्लिक, लोड शेडिंग और मिलावट माफिया के मुतल्लिक खतूत अहम हैं। अजीज़ तलबा, आप बीती के 10% चांस हैं। आप बीती के अहम उन्वानात 10 रुपए के नोट की आप बीती, एक दरख्त की आप बीती, किताब की आप बीती, एक कलम की आप बीती, पुराने कोट की आप बीती, पुरानी कार की आप बीती, पुरानी इमारत की आप बीती, मकान की आप बीती, फूल की आप बीती, उर्दू जुबान की आप बीती और पुराने मोबाइल फ़ोन की आप बीती। आप कोशिश करें कि आप इस सवाल में खतूत के सवाल को अच्छे तरीके से तैयार कर लें और आप बीती को एक नज़र देख लें। हमारा सबसे अहम सवाल नंबर 6 जो कि मजमून निगारी के मुतल्लिक है। अजीज तलबा, मैंने
अपने तजर्बे से देखा है कि गुज़श्ता सालों में आने वाले मज़ामीन आम तौर पर 3 उन्वानात के तहत आते हैं। इस सवाल में 3 मज़मून दिए जाते हैं जिनमें से एक मज़मून का करना लाजमी होता है। बेटा, ये सवाल अगर समझ के तैयार किया जाए तो ये मुश्किल सवाल नहीं है। उम्मीद है कि मेरे इस लेक्चर के ज़रिए आप इस सवाल को बासानी तैयार करने के काबिल हो जाएंगे। मज़ामीन के उन्वानात 3 तरह के होते हैं। एक मज़मून शख्सियत के मुतल्लिक होता है, एक मज़मून हालात हाज़िरा के मुतल्लिक होता है और एक मज़मून इल्म, दर्द दिल या मेहनत की बरक़ात के मुतल्लिक होता है। अब शख्सियत के मुतल्लिक जो अहम मज़ामीन हैं, मौसन इंसानियत, मेरी पसंदीदा शख्सियत, मेरा पसंदीदा शायर, मेरा पसंदीदा अदीब या मेरा पसंदीदा मुसन्निफ। अजीज तलबा, 90% चांस होता है कि एक शख्सियत के मुतल्लिक मज़मून आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि पहले दोनों मज़ामीन को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आपका मज़मून का सवाल 90% तैयार होने के चांसेस हैं। हालात हाज़िरा, अगर हालात हाज़िरा को देखा जाए तो हमारे यहाँ दहशतगर्दी, करप्शन, बदउनवानी, मंशियात और आजकल मसला कश्मीर जो है ये बर्निंग क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हालात हाज़िरा के मुतल्लिक आम तौर पर करप्शन, दहशतगर्दी, मंशियात और मसला कश्मीर के मुतल्लिक इन तमाम 4 मौज़ूआत में से एक मज़मून आ सकता है। इसके अलावा अहम मज़ामीन में दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, मेहनत की बरक़ात या अपनी मदद आप, इल्म के फ़ायदे, तालीम निस्वां, हुब्बुल वतन, हुब्बे वतन, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है या जुदाउद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। अजीज़ तलबा, अगर आप इन मज़ामीन को तैयार कर लें तो यकीनी तौर पर आप ये सवाल बासानी हल कर लेंगे। उम्मीद है कि मेरे इस मुख्तसर लेक्चर से आप लोगों को साल दवम में उर्दू की तैयारी में मदद मिलेगी। आखिर में बेटा, मैं उन तमाम तलबा और तालबात से मुखातिब हूँ जो फीस भरने के काबिल नहीं हैं और किसी एकेडमी में उर्दू की ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं। मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं। मैं अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा और आपके किसी भी सवाल का जवाब देने में खुशी महसूस करूँगा। बेटा, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।